میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے خداوند یسوع مسیح کے ایک معجزے کی کہانی جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی اس کو دوبارہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو ریویو کرنا چاہتا ہوں، اس کو ریوزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس معجزے کی کہانی کو ٹائٹل دینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ چوری کا معجزہ تھا؟ دیکھتے ہیں انجیل میں، ہم دیکھتے ہیں چاروں انجیلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو چھوا۔ He touched so many people and they were healed۔ بائبل کی چاروں انجیلوں میں ایسے 23 لوگوں کی لسٹ موجود ہے جن کے اوپر یسوع نے یا تو ہاتھ رکھا یا ان کو ٹچ کیا، انہوں نے شفا پائی، ان سے بدروحیں نکل گئیں۔ کون کون سے ہیں؟ لمبی 23 لوگوں کی لسٹ ہے، یہ ساری لسٹ تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں گلیل میں ایک کوڑی کی کہانی متی 8:2-23 میں ہے، پترس کے ساس کی کہانی، معجزے کی کہانی متی 8:14-15 میں موجود ہے، کفر نحوم میں 12 سال کی بچی کو یسوع نے چھوا، کفر نحوم میں اندھے کو چھوا، یروشلم کے اندھے کو، یرو کے 2 اندھوں کو، ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ اور پھر یسوع نے باغ گتسمنی میں جب پترس نے سپاہی کا کان اڑا دیا تو یسوع نے اس کو چھوا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے جس کو چھوا وہ ٹھیک ہوتا گیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ٹچ آف جیسس کرائسٹ۔ جیسس کرائسٹ کے ٹچ میں وہ شفا ہے جس سے لوگ صحت یاب یا جس سے لوگ ہیلڈ ہو جاتے ہیں، جس سے لوگ شفا پا جاتے ہیں۔ لیکن آج میں ایک اور قسم کے ٹچ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ کہانی ڈیفینیٹلی انجیلوں میں سنی ہوگی۔ یہ کہانی پائی جاتی ہے متی 9 باب اور اس کی 20 سے 22 آیت تک، مرکز کی انجیل 5 باب اس سے 27 سے 29 آیت تک، لوکا کی انجیل میں یہ کہانی پائی جاتی ہے 8 باب 43 سے 44 آیت تک۔ ایک ہی واقعہ ان تینوں انجیلوں میں بتایا گیا ہے، اور اس کو ہم کیا ٹائٹل دے سکتے ہیں؟ کیا یہ ریورسل ٹچ ہے؟ کیا یہ اسٹیلنگ آف میریکل ہے؟ کیا یہ ہڈن ہیلنگ ہے؟ کیا یہ ٹچ تھا فار دا فیئر آف لیوائٹس، جو کہ استثنا 15 باب میں 20، 21، 22 اور 24 کے مطابق، کہ کسی بھی شخص، کسی بھی عورت کو اگر ایسی بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کا خون جاری ہے، تو وہ کسی اور کو بھی ٹچ نہیں کر سکتی، اور وہ ناپاک ہوتی ہے۔ جس کو بھی وہ ٹچ کرتی ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے واز اٹ اے ہڈن ہیلنگ؟ واز اٹ اے اسٹولن ہیلنگ؟ تو ہم آج اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ متی میں لکھا ہے کہ یسوع کے سامنے ایک سردار کاہن نے منت کی کہ چل کر میری بیٹی کو دیکھ، وہ بیمار ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ مرکز میں اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے کہ یسوع گراسینیوں کے علاقے میں معجزے کر رہا تھا۔ اس نے وہاں پہ ایک آدمی سے بدروحیں نکالیں۔ عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر آیا اور اس نے کہا کہ یسوع میرے ساتھ چل، میری بیٹی مرنے کو ہے۔ اور یہی کہانی لوکا میں بھی لکھی گئی۔ دراصل یہ کہانی جو میں آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ اس عورت کی ہے
जिसका ये ईमान था कि वो यीशु की पोशाक को छू लेगी तो वो शिफा पा जाएगी। उस वक्त जब ये वाकया पेश आया तो यीशु दरअसल मौजज़ों के सफर में था। गलील के इर्द गिर्द वो मौजज़े कर रहा था, लेकिन भीड़ में, लूका रसूल कहता है कि और उसके इर्द गिर्द भीड़ थी और लोग उसके ऊपर गिरे जाते थे। भीड़ में से खामोशी से कहीं से रेंगती हुई एक कमजोर सी औरत नमूदार होती है। ये दिल में ईमान लेके कि अगर मैं यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो मैं सेहतयाब हो जाऊंगी, 12 बरस से जो मेरा खून जारी है उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मैं सेहतमंद हो जाऊंगी। वो यीशु के इस मौजज़े पर ईमान रखती थी कि मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। औरत, 12 बरस से उसका खून जारी, कमजोरी और लाचारी की हालत में। आप देखें कि इतने सालों से अगर किसी की बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है तो वो कितना कमजोर हो सकता है। शायद वो रिंग के या लेट के चल रही हो, बड़ी मुश्किल से जो हजूम है उसमें से वो रास्ता निकाल रही हो। और फिर लिखा है कि उसने अपना सारा माल हकीमों के ऊपर खर्च कर दिया। शिफा लेने के लिए, सेहतयाबी लेने के लिए उसने अपनी सारा माल, शायद उसके पास माल में क्या हो सकता है, घर ही हो सकता है, मवेशियों का तो मवेशी का तो वो देखभाल नहीं कर सकती होगी। उसने अपनी सारी जायदाद जो थी वो हकीमों के ऊपर लगा दी। लूका लिखता है कि उसने पीछे से आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बंद हो गया। लेकिन वहां पे अंजील क्या कहती है? एंड जीसस स्टॉप्ड, जीसस रुक गया। जीसस रुक गया। उसके हाथ लगाने से, उसका टच करने से जीसस स्टॉप्ड। जीसस हैज टू स्टॉप। क्योंकि उसका ईमान ही इतना मजबूत था कि यीशु को रुकना पड़ा वहां पे। क्या हमारे ईमान आज इतने मजबूत हैं कि हम ये कह सकें कि अगर हम यीशु को टच करेंगे ही विल स्टॉप? जब वो रुका तो उसने क्या कहा? व्हाट जीसस सेड, हु हैज टच्ड मी? मुझे किसने छुआ? हु हैज टच्ड मी? मुझे किसने छुआ? भीड़ में यीशु को भी नहीं पता चला कि किसने छुआ। वो भीड़ है, उसके ऊपर लोग गिरे जा रहे हैं। लूका रसूल कहता है कि लोग उसके ऊपर गिरे जाते थे। इस वाक्य में 2 किस्म के लोग हमारे सामने हैं। एक वो औरत है जो कि रेंगती हुई, कमजोर औरत रेंगती हुई जाके यीशु की पोशाक को टच करती है। और दूसरे वो लोग हैं जो उसके ऊपर गिरे जाते हैं। शायद वो भी शिफा लेने के लिए यीशु की तरला मिन्नत कर रहे हों, इंतजार में हों। शायद उन्होंने भी बीमार लोग, या उन्होंने भी वो लोग अपने साथ लाए हों जिनको शिफा की जरूरत हो। वो उसके ऊपर गिरे जाते थे। इसका मतलब है कि यीशु के ऊपर गिरने से शिफा नहीं मिलती। शिफा मिलती है उसको ईमान से टच करने के लिए। यीशु से वो कुव्वत नहीं निकलेगी अगर हम गिरे जाएंगे उसके ऊपर। यीशु से वो कुव्वत निकलेगी जब ईमान के साथ उस औरत की तरह हम उसको टच करेंगे। यीशु ने पूछा, हु हैज टच्ड मी? शागिर्दों ने कहा, बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द हैं सर। देयर आर सो मेनी पीपल, देयर इज अ क्राउड अराउंड यू एंड यू आर आस्किंग हु टच्ड मी?
यीशु ने कहा, मुझ में से कुव्वत निकली है। द पावर केम आउट ऑफ मी। क्या उसकी पोशाक में वो पावर छुपी हुई थी? नहीं, यह उसके छूने से यीशु की रूह जो थी वो हरकत में आई। द पावर इन हिज स्पिरिट touched that lady in response to her touch. जब उसने उसको छुआ तो यीशु की रूह से एक कुव्वत निकली, शिफा की कुव्वत निकली। फिर यीशु ने क्या कहा? कौन है जिसने मुझे छुआ? Who is the person who has touched me because power has gone out of me? किसने मुझे छुआ? Come out and show me, show the people, show the crowd, who are you, जिसने मुझे छुआ। यीशु जानता था कि उसको किसने छुआ, लेकिन वो लोगों को बताना चाहता था कि इस औरत का ईमान देखो कि यह किस ईमान से आई है, और इसके ऊपर लिवाइट्स 15 का कानून लागू होता है कि अगर ये किसी को छुएगी तो वो भी नापाक हो जाएगा। कहा कि मैं नापाक नहीं हुआ, इसने मुझे छुआ, कुव्वत निकली, इसने शिफा पाई, मैं नापाक नहीं हुआ। और वो लोग भी जो यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ से ये औरत गुजरती आई, जिसको इस औरत ने टच किया, वो सारे भी नापाक नहीं रहे। यीशु नहीं चाहता था कि अगर उस औरत को शिफा मिले तो वो छुपी रहे। यीशु छूता दूसरों को तो शिफा मिल जाती। यहां पे एक रिवर्सल टच हुआ है। उस औरत ने यीशु को छुआ तो वहां पे शिफा हुई। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक है। क्या हम एक भीड़ की तरह हैं? क्या हम यीशु के ऊपर गिरे जाते हैं? क्या हम यीशु से शिफा लेने के लिए उसको कहते हैं कि जीसस टच मी? लेकिन ऐसा नहीं। वो औरत ईमान के साथ आई, उसने टच किया यीशु को और शिफा पाई। उसने तो शिफा की हिस्ट्री बदल दी। कैसे हिस्ट्री बदल दी? मैं आपको बताता हूं कि जब लोगों ने उस औरत को देखा कि उसने उसको टच किया है और यीशु को पता चला है और यीशु के जिस्म से कुव्वत निकली है और औरत शिफा पा गई। और फिर क्या हुआ? मत्ती 14 आयत उसकी 34 और 36, मरकस 6:54 में देखते हैं क्या हुआ। और वो उसकी मिन्नत करने लगे। यीशु की लोग मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। A new sort of miracle happened. कि अब यीशु को जरूरत नहीं रही कि वो याईर के घर में जाए और जाके उस और बच्ची को शिफा दे। अब यीशु को जरूरत नहीं रही कि वो अंधे को टच करे और शिफा पा जाए। ऐसा उस औरत का ईमान था कि उसने यूनिवर्सली हीलिंग के प्रोसेस को तब्दील कर दिया। मरकस में लिखा है कि जितनों ने यीशु की पोशाक को छुआ तो वो अच्छा हो गए। पोशाक एक सिंबल है, पुराने अहदनामे में इसका जिक्र है। पोशाक वही पोशाक है यीशु की, वही यीशु है जिसका जिक्र पुराने अहदनामे में है। हिजकेल 16 बाब और उसकी 8
आयत में लिखा है, आई स्प्रेड कॉर्नर ऑफ माई गारमेंट ओवर यू टू कवर योर नेकेडनेस। ये वही यीशु है जो ये कह रहा है कि मैं अपनी गारमेंट का, अपनी पोशाक का कोना आपकी की जो नंगापन है या आपकी जो सिकनेस है उसके लिए मेरे पोशाक का कोना ही काफी है। इसी तरह मिलाकी 4:2 में लिखा है, सन ऑफ राइटियस हैज हीलिंग इन हिज विंग्स, विंग्स मीन इन हिज गारमेंट्स। तो इसका मतलब है कि यीशु के लिबास में, जिसका पुराने अहदनामे में जिक्र है, उसमें हीलिंग पावर है। हीलिंग पावर कैसे आती है? थ्रू द रेसिपिएंट ऑफ द हीलिंग। पावर कैसे यीशु से निकलती है? कि अगर रेसिपिएंट का ये ईमान हो कि मैं इसके की पोशाक को छू लूंगा तो मैं शिफा पा जाऊंगा। अगर हम ईमानदार के लिबास को अहमियत नहीं देते, गरचे कि हम नहीं देते, लेकिन औरत और उस हजूम ने जिन्होंने शिफा पाई, जिस हजूम ने जो कि जाके कह रहे थे कि हमें अपनी पोशाक का कोना ही छू लेने दे, तो ये हमें सबक देता है। आज भी यीशु का लिबास, यीशु की पोशाक मौजूद है। ये उसकी अब रूहानी लिबास है, रूहानी पोशाक है। वो हमें शिफा देती है, निजात देती है, बरकत देती है, और हम ईमान के साथ वो लेने के लिए तैयार रहते हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। औरत का ईमान बहुत मजबूत ईमान था कि मैं उसके पोशाक को छू ही लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी, और इस ईमान ने यीशु को रोक दिया। ही इज स्टॉप्ड। इतने बड़े हजूम में यीशु को रुकना पड़ा कि एक औरत, एक कमज़ोर नाचार औरत इतना बड़ा ईमान लेके आ गई कि उसने कहा कि मैं यीशु का पोशाक का कोना छू लूँगी तो मैं शिफा पा लूँगी। आज यीशु रूहानी लिबास पहने हुए है और हमें उसकी रूहानी पोशाक को टच करना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।